Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 4, which is Helen Keller. So you just listen carefully and try to understand. Let's start today's class. Helen Adams Keller was born in Tuscumbia, Ambala in 1880. Her father owned a cotton plantation and he was an officer in the Confederate Army during the Civil War. She started speaking when she was 6 months old and she was able to communicate with her parents. When she was 19 months old, a very high fever left Helen blind and deaf. When she was an adult, both her eyes were replaced with glass eyes for medical as well as cosmetic reasons. Means हेलन एडम्स केलर का जन्म अंबाला के टुस्काम्बिया में 1880 में हुआ था। उनके फादर का रुई का कॉटन का खेत था और वो संघीय आर्मी के एक ऑफिसर थे। उन्होंने 6 मंथ की उम्र में बोलना शुरू किया और अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करती थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब बोलते हैं रोकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक दैट। ओके। और 19 महीने की उम्र में उन्हें एक बार बहुत तेज फीवर आया, जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने सुनने और देखने की क्षमता खो दी। और जब वो और बड़ी हुई तो उनकी दोनों आईज ग्लास आईज में बदली गई एक ऑपरेशन के दौरान, और कुछ रीजंस थे, ठीक है, कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। मार्था वाशिंगटन, द डॉटर ऑफ देयर फैमिली कुक, was her only friend when she was young. They developed a sort of sign language so they could talk to each other. Helen was bright, but unfortunately, she was also an unruly, spoiled child who disrupted family life with her tempered tantrums. Means जब वो यंग थी, उनकी एक फ्रेंड थी मार्था वाशिंगटन, जो उनकी कुक की बेटी थी। उन दोनों ने मिलकर एक साइन लैंग्वेज डेवलप की ताकि वो आपस में बातें कर सकें। वो एक ब्राइट गर्ल थी, पर ना चाहते हुए भी उनका स्वभाव जो था वो गुस्से से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता था। ओके। इन 1886 हेलेन्स मदर रीड अ स्टोरी बाय Charles Dickens that described how another deaf-blind child named Laura Bridgman had been educated. Alexander Graham Bell taught speech to deaf students using a manual alphabet called Visible Speech that was invented by his father. He referred Helen and her parents to the Perkins Institute for the Blind for help. This is where Helen met Annie Sullivan. They were together for 49 years. Means 1886 में हेलन की माँ ने चार्ल्स डिकन्स की एक कहानी पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि कैसी एक ब्लाइंड बच्ची, जो ब्लाइंड और डेफ बच्ची लोरा ब्रिजमैन एजुकेटेड हुई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने नियमित अल्फाबेट्स का यूज करके एक स्पीच पढ़ाते थे, जिसे विजिबल स्पीच कहते थे, और ये स्पीच ग्राहम बेल के फादर ने इन्वेंट की थी, मीन्स आविष्कार किया था उस स्पीच का। ग्राहम बेल ने हेलन और उनके पेरेंट्स को परकिंस इंस्टीट्यूट बताया, जो ब्लाइंड्स के हेल्प के लिए था। यही हेलन एनी सुलेवान से मिली और उन्होंने 49 ईयर्स एक साथ गुजारे। Annie had an infection of the eyes called trachoma when she was 7 years old. She was legally blind until she had an operation at age 15 which restored some of her sight. Annie learned the manual alphabet at the Perkins School. Words were signed into the palm of the hand where a deaf-blind person could feel the movement of the fingers. This skill was critical for her success in working with Helen. Annie was loving, patient, and determined.
First, she taught Helen to behave, then how to spell things with her hands and to speak. Helen learned speech by feeling of throats and mouth of others as they spoke. Means 7 वर्ष की आयु में स्टूडेंट्स एनी को आंखों में एक इन्फेक्शन था जिसका नाम था ट्राकोमा। वो लीगली ब्लाइंड थी और जब वो 15 साल की हुई तो उनकी आंखों का एक ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और उनकी आंखों की कुछ रोशनी वापस आ गई थी, उनकी आंखों की जो दृष्टि थी वो कुछ वापस आ गई थी। एनी ने पर्किंस स्कूल में नियमित अल्फाबेट सीखे, हाथों से हथेली पर शब्दों को समझने के लिए कुछ साइन बनाए, ठीक है, कुछ साइन बनाए जिससे ब्लाइंड और डेफ पर्सन फिंगर के मूवमेंट से समझ सकते हैं लैंग्वेज को, कुछ वर्ड्स को समझ सकते हैं। एनी के लिए हेलन के साथ सक्सेस या उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल था, बट वो बहुत ही प्यारी और दृढ़ निश्चयी थी। पहले उन्होंने हेलन को अच्छा बिहेव करना सिखाया, फिर वर्ड्स को हाथों की मदद से स्पेल करना सिखाया। हेलन ने दूसरे के गले व मुंह को महसूस करके स्पीच सीखी, जैसे दूसरे बोलते हैं वैसे ही हेलन ने भी बोलना सीखा। Annie was able to teach Helen to understand finger spelling after she had made Helen feel water coming from a pump. Helen described it like, so अब एनी हेलन को फिंगर स्पेलिंग समझाने के योग्य थी, ठीक है, और उन्होंने हेलन को पानी का पंप से बाहर आना फील कराया, और जब पानी पंप से बाहर आया और हेलन के हैंड पर आया तब हेलन ने क्या बताया, देखो उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा। I stood still, my whole attention fixed upon the motion of her fingers. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought. And somehow the mystery of language was revealed to me. I know then the water, water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. Means उन्होंने कहा मैं स्थिर रह गई, मेरा सारा ध्यान उनकी उंगलियों पर केंद्रित हो गया। जैसे हम कुछ भूल जाते हैं और फिर याद आता है धुंधला धुंधला, ऐसा उन्हें भी लगने लगा, ठीक है, कुछ याद ऐसा कुछ उनको प्रकट होने लगा। और फिर फाइनली क्या हुआ, कैसे भी करके किसी ना किसी तरीके से उन्हें उनके सामने वो जो भाषा की जो पहेली थी वो उनके सामने प्रकट हो गई, या उन्हें वो वर्ड समझ में आ गया। फिर वो कहते हैं मुझे पता है कि WATER वाटर मीन्स कुछ ठंडा है, कुछ ठंडा है और बहुत ही अच्छा है, वंडरफुल है, जो मेरे हाथ पर बह रहा है। और उस लिविंग वर्ड WATER वाटर ने मेरी आत्मा को जागृत किया है। उनको जो उसका फीलिंग थी वाटर की और जो उन्हें वर्ड समझ में आ रहा है, उनको इतनी खुशी हुई, उनको अपनी आत्मा में बहुत अच्छा लगा और उनकी लाइफ में उससे क्या हो गया, उजाला हो गया और बहुत सारी होप आ गई, बहुत सारी आशाएं आ गई और उन्हें बहुत खुशी मिली उस टाइम पर। ओके स्टूडेंट्स, हेलन डिमांडेड टू नो द नेम्स ऑफ अदर थिंग्स। The first day she learned 30 words. After 6 months, she got to know 625 words. By the age of 10, she knew the manual alphabet Braille and how to use the typewriter. हेलन ने और चीज़ों के नाम सीखने की डिमांड की। फर्स्ट डे उन्होंने 30 वर्ड सीखे एंड 6 महीने में 625 वर्ड सीखे और 6 साल की उम्र में नियमित ब्रेल अल्फ़ाबेट सीखे और टाइपराइटर का यूज़ उन्होंने सीखा। एंड स्टूडेंट्स, ब्रेल एक लिपि है जो ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, ओके, जिसमें जो लेटर्स होते हैं वो डॉट से बने होते हैं और वो उभरे हुए होते हैं जिन्हें टच करके फील करके समझा जाता है और पढ़ा जाता है। In 1904, Helen graduated with honors from Radcliffe College. Annie interpreted lessons and spelled out textbooks for her. Helen learned to read
French, German, Greek, and Latin in Braille. Because of her accomplishments, Helen became famous. Alexander Graham Bell gave a picture of Helen and one of her letter to a newspaper. Then people became eager to meet Helen and Annie. Mark Twain called Annie a miracle worker. Means 1904 में हेलन ने ऑनर से ग्रेजुएशन रेडक्लिफ कॉलेज से की. ओके. एनी हेलन के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ती और उसकी व्याख्या मतलब उसको समझाती भी थी. हेलन ने फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन भाषा में पढ़ना सीख लिया जो ब्रेल में. ओके. उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण और सफलताओं के कारण वो फेमस हो गई. ग्राम बेल ने हेलन की एक पिक्चर और लेटर जो उन्होंने लिखा हुआ था न्यूज़पेपर वालों को दी, जो उन्होंने न्यूज़ में छाप दिया, जिससे लोग एनी और हेलन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुए. उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक होने लगे. और मार्क ट्वेन एनी को मिरेकल वर्कर के नाम से बुलाते थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ब्लाइंड और डेफ पर्सन को इतना फेमस करने में उनकी बहुत मदद की. ओके. ट्वेन एंड केलर बिकेम फ्रेंड्स. ट्वेन इंट्रोड्यूस्ड her to Henry H. Roger, an oil executive who agreed to pay Helen's expenses at Radcliffe College. Helen was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Means ट्वेन और केलर एक फ्रेंड बन गए. ठीक है, वो फ्रेंड बन गए. ट्वेन ने हेलन का परिचय हेनरी एच रोगर से कराया, जो हेलन का सारा खर्चा देने को तैयार हो गए हेलन उनके कॉलेज वालों को. Helen was an advocate for women and people with disabilities. She was in favor of women's right to vote and trade unions. She was against war, child labor, and capital punishment. Helen wrote 12 books, including her autobiography, The Story of My Life. She traveled over 40 countries to lecture on the problems of the blind and the need to prevent the cause of blindness. In 1920, she helped found the American Civil Liberties Union. She was presented with the Presidential Medal of Freedom in 1964 and elected to the Women's Hall of Fame in 1965. Means हेलन महिलाओं व लोगों के लिए एक वकील थी विकलांगता के साथ. ओके. एंड वह महिलाओं के वोट और व्यापार के अधिकारों के पक्ष में थी. वह बाल मजदूरी, युद्ध या लड़ाई दंगे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वह मृत्यु दंड के खिलाफ थी. हेलन ने अपनी आत्मकथा को मिलाकर कुल 12 किताबें लिखी और उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ओके. उन्होंने 40 से अधिक कंट्रीज में ट्रैवल किया और ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम्स को बताया और उसे रोकने के बारे में कहा कि हमें इसे रोकना चाहिए. 1920 में हेलन ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की हेल्प की और उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया. और 1965 में वुमेन्स हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया हेलन को. ओके स्टूडेंट्स. Helen Keller devoted her whole life to help others. She was a symbol of courage in the face of overwhelming odds. She died on June 1st, 1968, just a few weeks before her 88th birthday. During her remarkable life, Helen stood a powerful example of how determination, hard work, and imagination can allow an individual to triumph over adversity. Means हेलन ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हेल्प करने में गुजार दी. वह बड़ी से बड़ी बाधाओं में साहस का प्रतीक है. ठीक है. वह अपनी
88 जन्मदिन के फ्यू वीक्स पहले ही 1968 में 1 जून को इनकी मृत्यु हो गई। उनके इस उल्लेखनीय जीवन के दौरान हेलन एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे विपत्ति में दृढ़ निश्चय होकर मेहनत से और कल्पना से हम अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so I'm sure you understood today's class. So I will give you the assignment related to this. Just read your chapter very carefully and read your assignment carefully and do your work very beautifully. Okay students, so thank you so much. Bye bye.